اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. وہ نکلے کیوں تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے بچنے کی خاطر نکلے تھے. اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم کیا تھا کہ تم کافروں سے لڑو، کافروں سے جہاد کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا. اور وہ ہزاروں تھے، گھروں سے نکلے. انہوں نے کہا کہ کون لڑے گا، ہم سکون سے رہ رہے ہیں، اگر ہم کافروں سے لڑیں گے تو پھر ہمارے بچے بھی مر سکتے ہیں اور ہمارے گھر بھی گر سکتے ہیں، ہم خود بھی مر سکتے ہیں، قتل ہو سکتے ہیں، ہمارا مال بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم جہاد نہیں کریں گے. انہوں نے کہا سکون سے جی تو رہے ہیں. جو کافر تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، فساد کرتے تھے، گناہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا ان سے جہاد کرو. وہ ظلم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا ان کافروں کو ظلم سے روکو، تاکہ جو مظلوم ہے اسے تکلیف نہ ہو، غریب کو درد نہ ہو، دکھی کو مصیبت نہ پہنچے، دکھیوں کے دکھ ختم ہوں. اور وہ نکل گئے. انہوں نے کہا اگر ہم یہاں رہے تو ہمیں جانا پڑے گا. پہلے تو وہ اوپر سے ہاں ہاں کرتے رہے، ہاں ہاں چلے جائیں گے کریں گے جہاد، کیوں نہیں کریں گے. اندر سے وہ منافق تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. اور وہ کیوں بچ کر گئے تھے کہ ہم تکلیف سے بچیں، ہم مشقت سے بچیں، ہم آزمائش سے بچیں، ہمارا مال بچے، ہماری جانیں بچیں، ہمارا وقت بچے، ہمیں خطرہ نہ ہو. تو راستے میں وہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا موتو، وہ سارے مر گئے. ایک حکم کرنا تھا، وہ سارے مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ٹینشنوں کو دور کرتا ہے بندوں کی، ان پر رحمت برساتا ہے، ان کے دکھوں کو دور کرتا ہے، ہر چیز ان کو دیتا ہے، ہر کام میں ان کا خیال رکھتا ہے. لیکن جو بندے ہیں وہ شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں. لیکن بندے جو ہیں وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے ہیں. دیکھو، یہ مشقت سے بچنے کے لیے نکلے تھے، مصیبت سے بچنے کے لیے نکلے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو ہم پر مصیبت آئے گی. اگر ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے تو ہم مصیبت سے بچ جائیں گے. تو وہ اس لیے گھروں سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑا تھا راحت، آرام، سکون، چین حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر ان کو سکون ملا نہیں ملا، چین ملا نہیں ملا، راحت و آرام ملا نہیں ملا، ان کو امن ملا نہیں ملا. ان کو مصیبت ملی، ان کو مشکلات ملی، ان کو مشقت ملی، ان کو تکلیفیں ملی. تو قرآن نے یہ ایک اصول مقرر کر دیا کہ جو شخص
अल्लाह ताला के हुक्मों को छोड़ेगा, जो शख्स अल्लाह ताला के हुक्मों को छोड़ेगा इस वजह से कि मुझे आराम मिले, तो अल्लाह ताला के हुक्म छोड़कर उसे आराम नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला की बात न मानकर उसे सुकून नहीं मिलेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। इंसान समझते हैं मैं अल्लाह ताला की बात मानूंगा तो मुझे मुसीबत मिलेगी, ऐसा नहीं है। कुरान ने इशारा कर दिया, अल्लाह ताला की बात मानकर इंसान को राहत मिलती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है, पीस मिलती है। अगर जो चाहता है मुझे सुकून मिले, मुझे चैन मिले, मुझे इत्मीनान मिले, तो वो अल्लाह ताला के अहकामात पर चले, वो अल्लाह ताला की बातें माने। अगर अल्लाह ताला की बातें इंसान नहीं मानेगा तो उसे चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल नहीं करेगा तो उसे इत्मीनान नहीं मिलेगा। यह सीधी सी बात है। अब देखो, ये जो लोग थे ये मुसीबत से बचने की खातिर घर से निकले थे, लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला के हुक्म न मानकर इनको मुसीबत मिली, और जिस वक्त अल्लाह ने इनको जिंदा कर दिया तो फिर यह गर्दन झुका कर इन्होंने जिहाद भी किया। इनको यह बात समझ आ गई, शुक्र है इनको अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया। इन्होंने कहा शुक्र अल्लाह ताला ने हमको जिंदा कर दिया, अगर अल्लाह ताला हमें जिंदा ना करता तो हम नाकाम हो जाते, हम बर्बाद हो जाते, हम तबाह व बर्बाद हो जाते, हम जलील हो जाते। सवाल यह है कि क्या हमें मारने के बाद अल्लाह ताला दोबारा हमें जिंदा करेगा? नहीं करेगा। हमें चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनको मिला, हमें नहीं मिलेगा। दोबारा अल्लाह ताला के हुक्मों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने का हमें चांस नहीं मिलेगा, हमें मौका नहीं मिलेगा। और हम दीन पर चलें, अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह के रसूल के तरीकों पर, हुक्मों पर हम चलें, इससे हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। देखो, ये लोग समझ रहे थे कि हम अल्लाह की बात मानेंगे, वक़्त के नबी की बात मानेंगे तो इसमें ख़तरा है, इसमें मुसीबत है, इसमें हमारी जान ज़ाया हो सकती है। उन्होंने यह समझा था, तो इस वजह से वो जिस मुसीबत से बच रहे थे, अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़कर बचना चाहते थे, अल्लाह ताला के हुक्म ना मानकर वही मुसीबत, उससे सख्त मुसीबत उन पर आई। तो हम ये अपने ज़हनों में बात बिठा लें कि हम दीन पर चलेंगे, हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। दीन पर नहीं चलेंगे, हमारी ज़िंदगी बदतर होगी, हमारी ज़िंदगी तबाह होगी, हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी। आज ये बैठा हुआ है ज़हन में कि अल्लाह ताला के हुक्म न मानो, अल्लाह के रसूल के तरीक़ों पर ना चलो, ज़िंदगी बेहतर होगी। ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, गंदी हो रही हैं, तबाह हो रही हैं। इस वाक़े से ये इशारा मिलता है, इंसान अगर बीवी की खातिर अल्लाह को नाराज़ करेगा तो बीवी उसको ज़रिया बनेगी दुख देने का, तकलीफ़ देने का। अगर कोई दुकान की खातिर अल्लाह को नाराज़ करेगा तो दुकान ज़रिया बनेगी उसको तकलीफ़ देने की, उसको दुख देने की। दुकान ज़रिया बनेगी। अगर वो कोई गाड़ी की खातिर, जिस चीज़ की खातिर जो अल्लाह को नाराज़ करेगा, वही चीज़ उसके लिए मुसीबत बनेगी, वही चीज़ उसके लिए तकलीफ़ का ज़रिया बनेगी, वही चीज़ उसके लिए मुशक्क़त बनेगी। इंसान चीज़ों की खातिर, लोगों की खातिर, अपने काम की खातिर अल्लाह को नाराज़ ना करे, वरना वो लोग, वो चीज़ें, वो काम, वो उसके लिए अज़ाब बन जाएगा। इंसान चीज़ों की खातिर, लोगों की खातिर, कामों की वजह से अल्लाह को नाराज़ ना करे, वो फिर उसके लिए वबाले जान बन जाएंगे, वो उसके लिए अज़ाब बन जाएंगे। जिस वक़्त इंसान अल्लाह को नाराज़ करता है तो फिर अल्लाह ताला जब नाराज़ हो जाते हैं तो फिर जिस चीज़ की खातिर उसने अल्लाह को नाराज़ किया था, वो चीज़ उसके लिए अज़ाब बन जाती है।
फिर उसको वो चीज़ सुकून नहीं देती, चैन नहीं देती। आज कोई दुकान की खातिर अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, कोई ज़मीनों की खातिर अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, कोई बीवी बच्चों की खातिर अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, कोई अपने दोस्तों की खातिर अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, और बाद में वही दोस्त वही चीज़ें उसके लिए अजाब बन जाती हैं। जैसे देखो, इन लोगों ने ज़िंदगी की खातिर अल्लाह को नाराज़ किया था, तो यही ज़िंदगी उनके लिए अजाब बनी कि मौत आ गई। इन्होंने सोचा कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करेंगे तो हमारा माल जा सकता है, ज़ाया हो सकता है, हमारे घर तबाह हो सकते हैं। अब देखो, अल्लाह ने इनको मारा, जो बंदा मर जाए तो माल उसके कुछ काम आता है? माल उसके क्या काम आएगा? माल तो वहीं पड़ा रहेगा, और वो बंदा तो मरा हुआ वहां रहेगा, उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा। बच्चे उसके कुछ काम आएंगे? इन्होंने कहा हम बच्चों का ख्याल रखेंगे, अगर हम अल्लाह के रास्ते में निकले तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तो अल्लाह ने उनको मार दिया। अब जो बंदा मर गया वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? नहीं। तो बच्चों के साथ अल्लाह ने मारा, बीवी के साथ अल्लाह ने मारा। तो हम इस बात को समझें, हम ये चीज़ों की खातिर, लोगों की खातिर, माल की खातिर अल्लाह को नाराज़ ना करें। हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को हम राज़ी करें। अल्लाह के क्या हुक्म है? देखो, यह सही यकीन है कि अगर हम दीन पर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, अगर हम दीन पर ना चले तो हमारी ज़िंदगी बदतर होगी। यह है सही यकीन। असल चीज़ यह है, अगर हम अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें नहीं मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदतरीन होगी। आज ज़िंदगियां बदतर, गंदी, बदबूदार किस वजह से हैं? अल्लाह की बातें ना मानने की वजह से, अल्लाह के रसूल की बातें ना मानने की वजह से। और कुछ लोगों की ज़िंदगियां बेहतरीन हैं। एक तो यह है कि हमें लगे उसकी ज़िंदगी बेहतरीन है, एक एक्चुअल में उसी बंदे को लगे कि मेरी ज़िंदगी बेहतरीन है। यह तब होगा जिस वक़्त वो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर चले, तो तब जाकर ज़िंदगी बेहतरीन होती है। वरना ऊपर ऊपर से तो बंदा दिखा सकता है, डोंग रचा सकता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन है, मैं तो मज़े कर रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी तो बड़ी वीआईपी है, वीआईपी है। लेकिन ये ऊपर से सिर्फ शोबाजियाँ होती हैं, अंदर से डीपली एक्चुअल में उसी की ज़िंदगी बेहतरीन होती है जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करे। कोई 50 हुक्मों को मानता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के 50 हुक्मों को मानता है, तो 50 हुक्मों के मुताबिक इस हिसाब से उसकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। और कोई 100 हुक्मों को मानता है तो इस हिसाब से उसकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। अब हम ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कितने अहकामात हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जितने ज़्यादा अहकामात होंगे उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। अगर कोई चाहता है मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करूं, तो आसान सी टेक्निक है, आसान सा कुलिया है, आसान सा नुस्खा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात में ज़्यादती करता जा। जूं जूं तू ज़्यादती करेगा, जूं जूं तू अहकामात को बढ़ाएगा, वैसे वैसे तेरी ज़िंदगी बेहतरीन होती जाएगी। तो यह वाक़या नहीं बल्कि यह एक सीख है, यह ज़िंदगी गुजारने की सीख है, यह एक लर्निंग है। इसको अपनी ज़िंदगी में लाना है, इस उसूल को तो अपनी ज़िंदगी में लाना है। यह पूरी ज़िंदगी का लाइफ टाइम यह उसूल है कि भाई अगर ज़िंदगी को बेहतरीन करना चाहते हो, हुक्मों से जान ना छुड़ाओ, हुक्मों में जान लगाओ। जैसे जैसे हुक्मों में जान लगाओगे वैसे वैसे ज़िंदगी बेहतरीन होगी। जहाँ चाह वहाँ राह, जो चाहेगा उसकी राह बन जाएगी। अगर दिल में चाहत है कि वाकई मेरी ज़िंदगी बेहतरीन हो, तो ज़िंदगी बेहतरीन करने का यही एक रास्ता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात में अपनी जान खपाओ, अपनी जान लगाओ, जान को बचाओ ना। तो इस वाक़ये से हमने यही सीखा है।